Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology Absorption by Roots. This is episode 2.1.6. In this absorption by roots, we are with last two topics, that is the pathways that water uptake and forces responsible for the ascent of cell. We are going to talk about the different pathways that water can take. So let us move on to our topic. So topic 1, that what we are going to talk about, that is pathways that water can take. So there are two pathways. Now before we go to the pathways, let me draw the diagram that how the water is entering to into the root till xylem. So this is the root hair. Next to the root hair there is cortex. Next to cortex there is endodermis. Next to endodermis there is pericycle, and next to pericycle there is xylem. So this part is xylem. What is the function of xylem? To conduct water. This is the plant cell, as you know, so it is going to have cell wall. And it will also have vacuole. This will be also having its own vacuole. This will be having vacuole. And this will be having vacuole. Let me draw the cell wall so that it becomes easy for you to understand. Okay, so this is cell wall. Got it. And the plasma membrane. This one is the plasma membrane. This one is the plasma membrane. Okay. Now one more thing is there that is seen in many of the roots, that is the presence of Casparian strips. Casparian strips are present at the endodermis, or you can say between endodermis and pericycle, which blocks this one is Casparian strips. It is impermeable to water. Okay. Now here I am going to draw soil particles. So these are all soil particles. Is then surrounded by the water molecules. So I'm going to draw water molecules like this. So water is reaching to the root hair
by imbibition, and it comes towards the root hair with the process that is known as diffusion. These are all water molecules. Okay, let me check. Okay, so I'm going to put a color in it. Come to know that these ones are the water molecules. I was knowing it. Yeah. Okay. So these are all water molecules. And water molecules, once it touches the root hair, it tries to enter from here. It enters into the root hair, so the root hair becomes turgid. It enters from cytoplasm to vacuole to cytoplasm and pushes the cell sap upwards, and then finally reaches to the xylem with the help of a continuous chain. Okay. Now if you see here, water is moving from cytoplasm to cytoplasm and reaches where it reaches xylem. Now in the xylem, if you notice here, there are forces of attraction working between the water molecules, if you notice, at each and every. So inside each and every cell or inside each and every cytoplasm, and that one is considered as cohesive force. While if you see, when it touches the xylem, then there is a force of adhesion. So it's adhesive force. And because of these two forces, water is trying to rise by the process known as capillary action. But it does not rise till the top part of the leaf. But once the pull takes place, the water rises till the top part, or you can say tip, or you can say apex of the plant, and that pull is because of transpiration. उसका मतलब क्या हुआ? पानी जब अंदर जा रहा है, ओके, सॉइल के पास में आया तो वही डिफ्यूजन, सॉइल से रूट के पास अट्रैक्ट हुआ तो इम्बाइबेशन, अंदर जा रहा है तो ऑस्मोसिस, ऐसे करते करते साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म करते करते वो जाएगा जाइलम की ओर। वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स, और इसकी वजह से वो राइज होने वाले हैं जिसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और वो कैपिलरी एक्शन बहुत ऊपर तक नहीं जाने वाला है, वो एक लिमिटेड हाइट तक ही जाएगा, लेकिन बाकी का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपीरेशनल पुल, द पुल ऑफ वाटर, वो खींच रहा है, वाटर को खींच रहा है। वो पुल ऑन द वाटर या पुल ऑफ द वाटर इज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जैसे बाहर जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचते हुए बाहर लेके आएगा। समझ में आया? ये ट्रांसपीरेशनल पुल होता है ऊपर। तो ये एक पहला पाथवे हुआ, दिस इज द फर्स्ट पाथवे, जहाँ पर वाटर साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म होते हुए जाइलम तक जा रहा है, जाइलम तक जा रहा है, तो उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे का मतलब क्या? पाथवे दैट water flows from cytoplasm to cytoplasm till xylem is known as simplest pathway। और एक और पाथवे है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स वो कहाँ से जा रहे हैं? देखो, सेल वॉल से सेल वॉल जा रहे हैं।
सेल वॉल से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुक जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज नॉट अलाउिंग द वाटर टू मूव फर्दर। यहाँ पर भी ऐसा होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज नॉट अलाउिंग द वाटर टू मूव फर्दर। तो पानी को कहाँ पे जाना पड़ेगा? पानी को साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल वॉल to cell wall till xylem, बराबर, उसे कहते हैं एपोप्लास्ट। जाइलम तक तो पहुंचने वाला है, सेल वॉल टू सेल वॉल से फटाफट यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ से वो अंदर जाएगा और फिर वो साइटोप्लाज्म से होते हुए जाइलम में चला जाएगा। दैट इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। तो कितने पाथवे हुए? 2 पाथवे हुए। First one is which one? Cytoplasm to cytoplasm, and second one is which one? Cell wall to cell wall. Cell wall to cell wall, it is the fastest one, is the fastest pathway. ये जो पाथवे है वो कैसा पाथवे और फास्ट है? क्योंकि यहाँ पर उसको टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी नहीं देखनी पड़ती। साइटोप्लाज्म वाले में टर्जिडिटी, जैसे सेल अंदर गया वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। ये तो नॉर्मल। जब ये इसको दे रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड। ये हो जाएगा टर्जिड। जब ये इसको दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। ये इसने पानी आगे लिया, ये टर्जिड। फिर ये टर्जिड हो गया, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। ये क्या हो जाएगा? टर्जिड। तो ये टर्जिड फ्लैसिड करते करते सेल सेप को धक्का देते हुए साथ साथ में पानी का भी अंदर एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? सीधा जाइलम तक। लेकिन यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में कुछ भी ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, टर्जिड फ्लैसिड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली सेल वॉल टू सेल वॉल होते हुए एंडोडर्मिस तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो पेरिसाइकिल से जाइलम तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है। जाइलम तक पहुंचेगा लेकिन फिर वो सिम्प्लास्ट के होते हुए जाइलम तक पहुंचेगा, बट स्टिल इट इज़ अ फास्टेस्ट वन। क्यों? बिकॉज इट डजंट हैव टू कंपेयर द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द cells. Understood? It is moving fast. Why? Through the cell wall, because cell wall is completely permeable. समझ में आया? तो ये चीज़ है, ये इतना आपको याद रखना है। समझ में आया? So pathways that water can take are the 2 pathways. Number 1, cytoplasm to cytoplasm, that is symplast pathway, and number 2, cell wall to cell wall, that is apoplast pathway. But it does not reach continuously to the xylem. Till endodermis it doesn't have any problem, but from endodermis it cannot move further because in certain root cells there is a presence of Casparian strips which are impermeable to water and does not allow the water to move towards xylem. It has to follow the symplast pathway and then it enters to the xylem. xylem में एक बार पहुंचने के बाद वहाँ पे कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो अंदर खुद के अंदर हो गए तो वो कौन से फोर्सेस हो गए? वो है कोहेसिव फोर्स। और जाइलम वेसल के साथ वो कनेक्ट होगा तो कांटेक्ट में आने से क्या बन जाएगा? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? एडेसिव फोर्स लगेगा और वो ऊपर खींचा चला जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज कैपिलरी एक्शन। बट दिस इज टिल सर्टन हाइट, लेकिन पूरी हाइट तक पहुंचना है, एपेक्स तक पहुंचना है, हर एक लीफ के अंदर पानी को पहुंचना है, बराबर। एट द टॉप लेवल ऑल्सो द वाटर इज बीन ट्रांसपोर्टेड एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ट्रांसपिरेशनल पूल। वो हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतना पता चल गया होगा। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और डाउट प्लीज लेट मी नो। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब होता है राइज ऑफ सैप। ये कौन से सैप की बात कर रहे हैं पता है? वैक्यूल के अंदर जो सैप होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। So ascent of sap means what? Rise of a sap which is present in the vacuole, and vacuole contains what? Water, minerals, stored food particles, वो सब उसको धक्का देते देते ऊपर जाना। तो सबसे पहले आप देखोगे, बराबर, तो सबसे पहले वाला जो है वो कैपिलरी एक्शन। एंड कैपिलरी एक्शन इज बिकॉज ऑफ द 2 फोर्सेस। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है राइज ऑफ वाटर। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू राइज ड्यू टू cohesive force
एन एडहेसिव फोर्स, तो उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन, बराबर। तो एक पौधा है, तो पानी उसके अंदर यहाँ तक जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट वाटर राइजिंग अप टिल द apex part of the plant is because of the capillary action, because the height is very less. Capillary action can go up till certain limit, up till certain height, not a problem, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कैपिलरी एक्शन बड़े प्लांट्स हैं, सब बड़ा प्लांट है, तो हियर कैपिलरी एक्शन डजंट वर्क। डजंट वर्क क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइट, हाइट इज मोर, कैपिलरी एक्शन इतना बड़ा नहीं आएगा, समझ में आया? तो वो कैपिलरी एक्शन यहाँ पे फेल है, तो कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आता है रूट प्रेशर, और हमने रूट प्रेशर के बारे में लास्ट एपिसोड में देख लिया था। मिनिमम प्रेशर जो है, बराबर, किसके अंदर? रूट सेल्स के अंदर। वो कैसे डेवलप होता है? टर्जी फ्लैसी की वजह से। और उसको क्या करना है? जो सेल सेप होते हैं उसको धक्का देना है। तो यहाँ पर मान लो कि भाई ये रूट हेयर है, बराबर, रूट हेयर है, तो इस रूट हेयर के अंदर जो सेल्स है उसको धक्का देते देते कहाँ तक आना है? लीफ तक आना है। मान लो कि भाई ओके, यहाँ पर मैंने एक लीफ बना दिया, यहाँ पर मैंने एक लीफ बना दिया, तो वो पानी कहाँ तक जाना चाहिए? इस लीफ तक जाना चाहिए, बराबर। तो लीफ तक जाएगा, हाँ, लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं। किसकी वजह से जाएगा? रूट प्रेशर की वजह से। सो प्रेशर एक्सर्टेड, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रेशर एक्सर्टेड इन द सेल्स ऑफ रूट ड्यू टू, किसकी वजह से? टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी की वजह से। रूट प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड इन द सेल्स ऑफ रूट ड्यू टू द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी टू पुश द सेल सैप अपवर्ड इज कॉल्ड रूट प्रेशर। तो इसमें रूट प्रेशर आएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। रूट प्रेशर इसमें भी होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। कैपिलरी एक्शन है, लेकिन कैपिलरी एक्शन यहाँ पे काम नहीं करता, समझ में आ? और अगर ऐसे प्लांट्स होते हैं, मान लो कि भाई ऐसे प्लांट्स नहीं कहते, उसको ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ट्रीज इस तरह की है, ट्रीज है, ट्री है, तो वो हाइट में बड़ा होता है, हाइट इज मोर। तो उसमें रूट प्रेशर काम में आएगा? रूट प्रेशर काम में नहीं आएगा, रूट प्रेशर फेल्स।
क्यों फेल हो जाता है? तो इसका टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी कितना देने का? सो इट रिक्वायर्स मोर टू बी टर्जिड and more to be flaccid. वो नहीं हो सकता. सो यहाँ पर रूट प्रेशर काम में नहीं आता. सो हियर रूट प्रेशर फेल्स. छोटे पौधे होते हैं तो कैपिलरी एक्शन चलेगा, उससे थोड़े बड़े होंगे तो कैपिलरी एक्शन भी आएगा और साथ साथ में रूट प्रेशर आएगा. लेकिन ज़्यादातर रूट प्रेशर एक्सेप्टेबल है, कैपिलरी एक्शन कभी काम में नहीं हुआ तो. लेकिन इसमें कैपिलरी एक्शन होगा ही नहीं, रूट प्रेशर भी नहीं हो. कैपिलरी एक्शन का मतलब राइज ऑफ वाटर ड्यू टू कोहेसिव एयर. तो कितना पानी यहाँ तक जाएगा? मान लो कि भाई यहाँ पर एक लीफ है, मैं ऐसा करके आगे आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पर एक लीफ है, तो यहाँ तक उसको पानी पहुँचाना है ना, यहाँ तक उसको पानी पहुँचाना है. तो इतना कैपिलरी एक्शन थोड़ी काम में आएगा, रूट प्रेशर भी काम में नहीं आएगा. रूट प्रेशर को अगर काम में करना है तो फिर कितना ज़्यादा टर्जिड और फ्लैसिड होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा. तो उसकी वजह से सेल बस्ट भी हो सकते हैं, इसलिए रूट प्रेशर इसमें काम भी नहीं आएगा. देन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थियरी इज गोइंग टू वर्क? तो वहाँ पर आता है नंबर 3 वाला थियरी, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी. उसे कहते हैं सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर भी काम में आता है. अभी यहाँ पे देखो अब शांति से, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सक्शन प्रेशर किस तरह से. तो मान लो कि भाई यहाँ पर एक लीफ है और लीफ के पास क्या है? स्टोमेटा. और लीफ से जुड़ा हुआ है उसका वेन्स और वो सब. तो मैं यहाँ पे एक वेन बता देता हूँ, क्योंकि वेन्स दैट आर supplying water and conducting food as well. Okay, and that is connected to what? That is connected to the stem and it is connected to the tree trunk. Okay, और यहाँ पर root. This one is actually a xylem vessel. So here let me draw it once again. This is its trunk. Okay, trunk. And this one is one of the xylem vessel. Okay. तो यहाँ पर पानी आएगा, पानी तो अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. ये क्या है? ये उसका रूट हेयर है. दिस वन इज अ रूट हेयर. This one is root hair. So I am writing RH. This one is xylem. Okay, and here the stomata is there, and this one is guard cells, right? So which pressure theory is not going to work? Capillary action and root pressure theory is not going to work for trees. कैसे trees? Tall trees, banyan tree, neem tree, people tree, sequoia plants. For that ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी विल वर्क, सक्शन प्रेशर थियरी विल वर्क. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसके लिए काम आता है. टॉल ट्रीज के लिए काम आता है, जैसे कि सेक्वोया, नीम ट्री, बनियन ट्री. इन सब के लिए सक्शन प्रेशर या तो फिर ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी काम आता है, बराबर. लेकिन छोटे के लिए कैपिलरी एक्शन भी होगा, ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी होगा. इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल प्लांट्स. फॉर ऑल प्लांट्स, सबके लिए ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी काम में आता है. और ये थियरी देने वाला कौन था पता है? साइंटिस्ट कॉल्ड डिक्सन एंड जॉली. So Dickson and Jolly gave a transpirational pool theory and suction pressure theory, right, for tall trees, but it is working for all the plants. सभी plants के लिए काम में आता है.
अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स? टू गिव आउट वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पे अगर पानी एक मॉलिक्यूल बाहर आया, दूसरा बराबर, ऐसे करते करते यहाँ पे पूरी एक चेन उसको खींचती लेके आएगी। So it forms a continuous water column. Transpirational pool theory के अंदर there is a continuous water column formed from the stomata of the leaf till the root hair. So it keeps on releasing water as water vapor, and it keeps on absorbing water by the process of osmosis, or you can say endoosmosis. तो यहाँ पे osmosis होता रहेगा, ऊपर से पानी बाहर निकलता रहेगा. That process is known as what? Transpiration. So here suction pressure is created when the water comes out in a form of water vapor. So which pressure is created here? Suction pressure is created. This suction pressure की वजह से this suction pressure will pull the other water molecules, because the water molecules are in contact with each other with the help of cohesive and adhesive force. समझ में आया? उसकी वजह से अगर इसको खींचो तो उसके पीछे पीछे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी चले आएंगे, जैसे just like a chain. So this is what we call as transpirational pool theory. Transpirational pool theory was given by Dixon and Joly. It was based on the concept of cohesive, adhesive and the process of transpiration. Cohesive, पहले तो आएगा process of transpiration और फिर बाद में आता है cohesive and adhesive force. Transpiration, removal of water in a form of water vapor through the aerial parts of the plant, especially stomata. स्टोमेटा से बाहर आया, बाहर पानी अगर आ रहा है तो वो एक मॉलिक्यूल बाहर आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच के लेके आएगा बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स. एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम मेंटेन होता है. कंटिन्यूस वाटर कॉलम जाइलम के अंदर मेंटेन हुआ. वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्स. बराबर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंटिन्यूस वाटर कॉलम. कंटिन्यूस वाटर कॉलम मेंटेन होता है. is maintained due to what? Due to cohesive and adhesive force. तो इसकी वजह से प्लांट के अंदर टॉप रीजन तक वो पानी आराम से पहुंचता है. सो टिल द एपेक्स ऑफ द प्लांट, टिल द फर्स्ट लीफ at the top is receiving water with the help of transpirational pool theory, and it is acceptable by all of the other people as well as it is seen in all the plants. Capillary action छोटे प्लांट में दिखाई देता है. रूट प्रेशर थोड़े से बड़े प्लांट, जब पौधा जब बड़ा होता है, ट्री बनता है, उससे पहले का जो स्टेज होता है वहाँ तक रूट प्रेशर देखने को मिलता है. और जो ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी है ज़्यादातर बड़े प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द प्लांट्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी. थैंक्स वेरी मच गाइस. If you have any doubt or any sort of a questions, please let me know in the comment box. See you in the next episode with the experiments.